Hello everyone, welcome to Complex Engineering. So in this video we are going to talk about electric overhead traveling crane. And in this video we will also be discussing about what is millwright department and what is the work of this department in our rolling stock industry. First of all, this question often comes in the mind of many people: what is rolling stock department? Rolling stock is a department which is very responsible for doing overhauling, testing, maintenance, inspection, commissioning of powered and unpowered rail vehicle. Now, what is powered rail vehicle and unpowered rail vehicle? Powered rail vehicle, any rail vehicle which require power for its operation, it is known as powered rail vehicle. Like for example, you can consider electric locomotive or can say electric trains. So these are the vehicle which require power for its operation, so that's the reason it is known as powered rail vehicle. And then we have diesel locomotive require diesel power for its operation, so it is also known as powered rail vehicle. Now, what is non-powered rail vehicle? Non-powered rail vehicle, like for example, we have wagons, we have coaches. So these wagons and coaches does not require any power for its movement, right? It can only be moved when powered rail vehicle is being connected with this vehicle, right? So that is the reason it is known as non-powered rail vehicle. So any rail vehicle which require power for its operation, then it is known as powered rail vehicle. Any vehicle which does not require any power for its operation, then it is known as non-powered rail vehicle. So rolling stock is a department, or can say it is an industry where we do basically maintenance, overhauling, testing, troubleshooting, commissioning, overhauling of powered and non-powered rail vehicle, right? And apart from that, in order to do the maintenance of this rail vehicle, there is requirement of equipments, right? And that equipment is known as depot equipment, right? And the department which doing maintenance of that equipment, depot equipment, that department is known as millwright department. Now if I would give you the example of depot equipment, like for example, we have first of all electric overhead traveling crane. So this electric overhead traveling crane, it is also a depot equipment. And then we have like diesel shunter, and then we have RRM, and then RRV, mobile lifting jack, rail car lifting system, and then compressors, pneumatic compressors, and then underfloor wheel lathe machine, and then auto wash plant. So these are the depot equipments which is very responsible for carrying out the maintenance activities of train, right? And people, or can say department, which doing maintenance of this like depot equipment, that department is known as millwright department. जो कि ये डिपो इक्विपमेंट का मेंटेनेंस कर रहा होता है, उसको बोला जाता है millwright डिपार्टमेंट, राइट? तो अब तक कि हमने millwright डिपार्टमेंट में कौन कौन से इक्विपमेंट्स आते हैं मोटे मोटे तौर पर हमने जो डिस्कस किया। फर्स्ट इज इलेक्ट्रिक ओवरहेड ट्रैवलिंग क्रेन, जिसके बारे में हम लोग ये वाली वीडियो में बात करेंगे। इलेक्ट्रिक ओवरहेड ट्रैवलिंग क्रेन सिर्फ ये रोलिंग स्टॉक इंडस्ट्री में ही नहीं यूज़ की जाती है, बहुत इंडस्ट्री में यूज़ की जाती है, जैसे कि सीमेंट इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में भी इसे यूज़ किया जाता है, फिर पावर प्लांट इंडस्ट्री में भी यूज़ किया जाता है, स्टील इंडस्ट्री में भी यूज़ किया जाता है, राइट? तो ये ईओटी क्रेन, इट इज़ लाइक काइंड ऑफ वर्सेटाइल टॉपिक। इसके बारे में अगर हम लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ जाते, इट इज जस्ट लाइक एचओएक्स सिस्टम। इसके बारे में अगर हम लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ जाते, इफ़ यू हैव गुड नॉलेज अबाउट ईओटी क्रेन्स, व्हाट आर द मेंटेनेंस प्रोटोकॉल्स फॉर द ईओटी क्रेन्स एंड व्हाट आर द फॉल्ट्स which often takes place in EOT cranes, then it would be like very helpful in order to like switch in any of the field. Like for example, if I want to go in cement industry, or can say steel industry from rolling stock department, and if I have a good idea about EOT cranes, and at steel industry, if there is a requirement of EOT crane person, then definitely I can apply for that. So it is kind of versatile topic, right? It is a versatile field we can say, राइट? तो जैसे कि हमने डिस्कस किया फर्स्ट मिलराइट डिपार्टमेंट में, जैसे कि हमने बात किया, जैसे कि हमने अब तक के डिस्कस किया, हमारे रेलवे मेंटेनेंस में, ट्रेन मेंटेनेंस में दो डिपार्टमेंट है, रोलिंग स्टॉक डिपार्टमेंट एंड सेकंड इज मिलराइट डिपार्टमेंट। रोलिंग स्टॉक डिपार्टमेंट क्या करेगा? ट्रेन का मेंटेनेंस करेगा, राइट? ट्रेन का मेंटेनेंस करेगा। लाइक फॉर एग्जांपल, ट्रेन में अगर कुछ फॉल्ट आ जा रहा है, जैसे कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करेगा और करेक्टिव मेंटेनेंस करेगा। अब वो मेंटेनेंस के लिए जो इक्विपमेंट की जो रिक्वायरमेंट है, वो इक्विपमेंट का मेंटेनेंस करने का काम कौन करेगा? मिलराइट डिपार्टमेंट करेगा। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया, मिलराइट डिपार्टमेंट में कौन कौन से इक्विपमेंट्स आते हैं, सबसे कौन कौन से इक्विपमेंट मिलराइट डिपार्टमेंट डिपो इक्विपमेंट का मेंटेनेंस करने का काम करते हैं। इन अ वेरी सिंपल टर्म वी कैन से, सो व्हाट आर दी लाइक इक्विपमेंट्स विच इज़ कमिंग इन डिपो, विच वी आर कॉलिंग एज डिपो इक्विपमेंट्स। सबसे पहला अगर हम लोग देखें ईओटी क्रेन, फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें आरआरवी हो गया, फिर उसके बाद आरआरएम हो गया। आरआरवी क्या है? आरआरवी इट इज़ रेल रोड व्हीकल विच हैज़ ऑल द री रेलिंग इक्विपमेंट्स। नाउ यू मस्ट हैव बीन थिंकिंग व्हाट इज री रेलिंग इक्विपमेंट्स।
In case, imagine the situation, train got derailed all of a sudden from track, then we need to derail the train. In order to derail the train, we need some equipments. That equipments like जैसे for example DUO ट्रांसवर्सल जैक होता है, हाइड्रोलिक जैक होता है, फिर उसके बाद कंट्रोलर होता है. सारे इक्विपमेंट्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे हम लोग आगे आने वाली वीडियो में, राइट. तो ये रीरेलिंग इक्विपमेंट कहाँ पे होते हैं? हमारे आरआरवी में होते हैं. ये बेसिकली मर्सिडीज बेंज की होती है मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री में. मॉडल नंबर भी इसका यूनिमॉक 400 समवेयर होता है, राइट. तो ये आरआरवी जैसे कि हमने नाम से पता है, आरआरवी का फुल फॉर्म जो होता है दो होता है. री रेलिंग व्हीकल भी बोला जाता है, री रेलिंग व्हीकल, और कोई से रेल रोड व्हीकल भी बोलता है. इसको अगर हम लोग देखें स्पेसिफिकली री रेलिंग व्हीकल ही बोल सकते हैं. क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि इसमें अगर हम लोग देखें री रेलिंग इक्विपमेंट होता है. सो दैट इज द रीज़न इट इज़ नोन एज री रेलिंग व्हीकल, राइट. तो इसके भी बारे में बात करेंगे इन फ्यूचर. आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट ऑल दिस टॉपिक इन अ वेरी डिटेल वे, राइट. फिर उसके बाद ये री रेलिंग व्हीकल के बारे में हमने डिस्कस किया. फिर उसके बाद हमारे पास आरआरएम होता है, रेल रोड मोटर. आरआरएम रेल रोड हम लोग बोल सकते हैं मोटर. तो इसका क्या काम होता है? ये बेसिकली एक ऐसी मोटराइज व्हीकल होती है जो कि मतलब रेल पे भी चल सकती है, रोड पे भी चल सकती है. सो दैट्स द रीज़न इट इज़ नोन एज रेल रोड मोटर, राइट. अभी इसके बाद अगर हम लोग देखें डीजल शंटर होता है. डीजल शंटर क्या करता है? डीजल लोकोमोटिव होता है एक तरीके का जो कि ट्रेन को शंटिंग करने का काम करेगा, जो कि डेड ट्रेन होगी. फिर उसके बाद ऑटो वॉश प्लांट है. फिर उसके बाद रेल कार लिफ्टिंग सिस्टम है. रेल कार लिफ्टिंग सिस्टम ये भी क्या होता है इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे. एंड देन वी हैव मोबाइल लिफ्टिंग जैक. मोबाइल लिफ्टिंग जैक, व्हाट इज मोबाइल लिफ्टिंग जैक? एज द नेम इज इंडिकेटिंग, इट इज अ जैक which can move from its position and it can lift the train vehicle. So that is the reason it is known as mobile lifting jack. Apart from that we have auto wash plant and then we have compressor room. ऑटो वॉश प्लांट ये एक ऐसा प्लांट होता है जिसमें ट्रेन ऑटोमेटिकली वॉश होकर आती है. वी हैव कंप्रेसर्स रूम. कंप्रेसर रूम में क्या होता है? बेसिकली न्यूमेटिक एयर बनने का काम होता है, और वो न्यूमेटिक एयर, हाई प्रेशर एयर को हम लोग यूटिलाइज करते हैं मेंटेनेंस के लिए. जैसे कि अगर ब्लोइंग करना हो, डस्ट निकालना हो, तो ऐसे केस में वो हाई प्रेशर एयर का यूज़ किया जाता है. अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे पास होती है कुछ व्हीकल्स, जैसे फॉर एग्जांपल फोक लिफ्ट होती है. फिर उसके बाद स्टैकर होती है. फिर उसके बाद हैंड पैलेट होते हैं. तो ये सारे जो है ये डिपो इक्विपमेंट में आते हैं. अब ये डिपो इक्विपमेंट का मेंटेनेंस करने का काम जो डिपार्टमेंट करता है वो बेसिकली मिलराइट डिपार्टमेंट होता है. तो हमारा जो टॉपिक था वो था इलेक्ट्रिक ओवरहेड ट्रैवलिंग क्रेन. इलेक्ट्रिक ओवरहेड ट्रैवलिंग क्रेन जैसे कि हमने डिस्कस किया, व्हाई इट इज़ नोन एज COT क्रेन. इट रिक्वायर्स इलेक्ट्रिसिटी फॉर इट्स ऑपरेशन एंड इट इज़ वर्किंग एट ओवरहेड एंड इट इज़ ट्रैवलिंग. सो दैट इज द रीजन इट इज़ नोन एज इलेक्ट्रिक ओवरहेड ट्रैवलिंग क्रेन. This crane has basically two motions. First is the longitudinal motion and second is the lateral motion. Longitudinal motion, you can imagine it has two motion. It has got two motion. First is in the direction of y-axis and second is in direction of x-axis. जैसे कि हमने डिस्कस किया दो मोशन मिलेंगे. फर्स्ट इज द लॉन्जिट्यूडनल मोशन. लॉन्जिट्यूडनल मोशन ये वाला मोशन होगा, राइट. लॉन्जिट्यूडनल मोशन ये वाला मोशन होगा. और दूसरा जो मोशन होगा लेटरल मोशन. लेटरल मोशन मतलब लेफ्ट राइट ये वाला जो मोशन होगा वो लेटरल मोशन होगा. तो किस तरीके से होगा उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं. तो हर एक कंपोनेंट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं EOT क्रेन के. तो सबसे पहला अगर हम लोग देखें जो EOT क्रेन है वो हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देती है. अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये जो EOT क्रेन सबसे बॉटम वाले पार्ट से स्टार्ट करते हैं. सो लेट्स से स्टार्ट विद द बॉटम पार्ट. तो यहाँ पर ये जो बॉटम वाला जो पार्ट होता है इसे बेसिकली बोला जाता है रनवे बीम, राइट. इसको बोला जाता है रनवे बीम, राइट. ये कुछ हमें इस तरीके से दिखाई देता है. जस्ट होल्ड ऑन. रनवे बीम के ऊपर जब जस्ट ऊपर लगा होता है रनवे रेल. तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं ये जो हमें जो दिखाई दे रहा है इट इज़ नोन एज रनवे बीम. इसको बोला जाता है रनवे बीम. रनवे बीम के ऊपर जस्ट जो लगा होता है वो लगा होता है रनवे रेल. यहाँ पर ये रनवे बीम है. दिस इज़ रनवे बीम एंड इट इज़ नोन एज रनवे रेल. ये जो ऊपर जो रेल जो लगा है ये है रनवे रेल. अभी ये रनवे रेल के ऊपर ही पूरी हमारी EOT क्रेन चलती है जब हमारा मोशन लॉन्जिट्यूडनल होता है तो, राइट. तो यहाँ पर ये रनवे रेल, रनवे बीम एंड देन जस्ट अपर जो लोकेटेड है उसे बोला जाता है रनवे रेल, राइट. तो यहाँ पर जैसे कि हमने बात किया था ये रनवे रेल के ऊपर हमारी EOT क्रेन चलती है, राइट. अभी जैसे कि हमने बात किया रनवे बीम, उसके ऊपर रनवे रेल, और रनवे रेल के ऊपर क्या लगा होता है बहुत इंपॉर्टेंट है. रनवे रेल के ऊपर जो लगा होता है वो लगा होता है बेसिकली एंड कैरेज या फिर बोल सकते हैं ट्रक, राइट. तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ सेकेंड. So this is known as ant carriage or can also say truck,
राइट। यहाँ पर ये ट्रक होता है, राइट। तो रनवे बीम, रनवे रेल, उसके ऊपर एंड कैरेज लगा होता है जिसे ट्रक भी बोला जाता है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें कुछ इस तरीके से हमें दिखाई दे रहा है, ये एंड कैरेज होता है जिसे बेसिकली ट्रक भी बोला जाता है, एंड कैरेज ट्रक, राइट, जो कि रनवे रेल के ऊपर चलता है। सो यदि क्वेश्चन कम्स इन ईओटी क्रेन व्हाट रन्स ओवर रनवे रेल, सो दैट इज एंड कैरेज ट्रक, राइट। अभी कितने एंड कैरेज ट्रक होते हैं? 2 एंड कैरेज ट्रक होते हैं। एक एंड कैरेज ट्रक यहाँ पर लोकेटेड है, दूसरा जो एंड कैरेज ट्रक होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में लोकेटेड होगा। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से एंड कैरेज ट्रक यहाँ पर लगा और दूसरा जो एंड कैरेज ट्रक है वो यहाँ पर अभी हमें दिखाई दे रहा है। नाउ ये एंड कैरेज ट्रक के ऊपर क्या लगा होता है? एंड कैरेज ट्रक के ऊपर लगा होता है ब्रिज गर्डर। सो यहाँ पर अगर हम लोग देखें कुछ इस तरीके से ब्रिज गर्डर लगा है। सो दिस इज ब्रिज गर्डर, जो कि कहाँ पर लगा होता है? एंड कैरेज ट्रक के ऊपर लगा होता है। ये वाली फिगर में अगर हम लोग देखें क्लियरली विजिबल है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें कुछ इस तरीके से ये एंड कैरेज ट्रक, ये एंड कैरेज ट्रक के ऊपर क्या लगा है? ब्रिज गर्डर लगा है। अब ये ब्रिज गर्डर के ऊपर भी रेल लगी होती है जिसे बोला जाता है ब्रिज रेल। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें कुछ इस तरीके से एरो की टिप, वी नीड टू फोकस ओवर द टिप ऑफ एरो, राइट, और कैन से कर्सर। तो यहाँ पर ये इसके ऊपर जो ब्रिज गर्डर के ऊपर जो रेल लगी होती है उसे बोला जाता है ब्रिज रेल। ये वाली फिगर में आई थिंक सो विजिबल होगी। तो यहाँ पर जैसे हमने बात किया ये ब्रिज गर्डर है, सो ये हो गया ब्रिज गर्डर। ब्रिज गर्डर के ऊपर जो रेल जो लगी होती है ऊपर की तरफ, इसे बेसिकली क्या बोला जाता है? ब्रिज रेल। ये है क्या? ये बेसिकली ब्रिज रेल। अब ये ब्रिज रेल के ऊपर बेसिकली क्या होता है? कुछ इस तरीके से ट्रॉली फ्रेम लगा होता है। अभी जो ट्रॉली फ्रेम है, ये ट्रॉली फ्रेम ब्रिज रेल के ऊपर क्या हो रहा होता है? स्लाइड हो रहा होता है, राइट। तो जब ये ट्रॉली फ्रेम ब्रिज रेल के ऊपर स्लाइड हो रहा होता है तो ऐसे केस में हमें कौन सा मोशन मिलता है? हमें लैटरल मोशन मिलता है। और यहाँ पर ये जो हमें जो एंड ट्रक जो दिखाई दे रही है, ये एंड ट्रक जब ये रनवे बीम के ऊपर जो रेल लगी है उसके ऊपर स्लाइड हो रही होती है तो हमें कौन सा मोशन मिलता है? लॉन्जिट्यूडनल मोशन मिलता है। तो इन सिंपल वर्ड वी कैन से हमें जो लॉन्जिट्यूडनल मोशन जो मिलता है वो किसके वजह से मिलता है? एंड ट्रक के वजह से मिल रहा होता है, जो कि बेसिकली रनवे बीम के ऊपर जो रनवे रेल लगी होती है उसके ऊपर स्लाइड हो रही होती है। और यहाँ पर ये जो हमें जो लैटरल मोशन जो मिलता है ये हमें बेसिकली ट्रॉली फ्रेम के थ्रू मिलता है। ये ट्रॉली फ्रेम को क्रैब भी बोला जाता है क्योंकि इसका जो मोशन होता है इट इज जस्ट लाइक अ क्रैब मोशन, लैटरल मोशन होता है, राइट। तो ये जो ट्रॉली फ्रेम है किसके ऊपर मूव हो रहा होता है? ये बेसिकली जो ब्रिज गर्डर के ऊपर जो ब्रिज रेल है उसके ऊपर मूव हो रहा होता है, राइट। तो सिंपल वर्ड में रनवे रेल के ऊपर जो मूव हो रहा होता है, रनवे रेल के ऊपर जो मूव हो रहा होता है वो होता है एंड ट्रक। और ये जो एंड ट्रक होता है रिस्पॉन्सिबल होता है लॉन्जिट्यूडनल मोशन के लिए। और ये जो ब्रिज रेल के ऊपर जो मूव हो रहा होता है वो ट्रॉली फ्रेम होता है। और जो ट्रॉली फ्रेम होता है बेसिकली ये लैटरल मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से मोटर लगी होती है। यहाँ पर ये मोटर लगी है और यहाँ पर ये वाली मोटर लगी है। अभी ये वाली जो मोटर होती है ये बेसिकली मोटर ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? हमारी क्रेन के मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। हमारा जो क्रेन है उसके मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये वाली जो मोटर और ये वाली जो मोटर है, इसको देख के हमें क्या लगता है कौन सा मोशन होगा? लॉन्जिट्यूडनल मोशन होगा या फिर लैटरल मोशन होगा? ऑब्वियसली लॉन्जिट्यूडनल मोशन होगा। अभी यहाँ पर ये जो लॉन्जिट्यूडनल मोशन है, ये लॉन्जिट्यूडनल मोशन के वजह से किसका मूवमेंट होगा? ये लॉन्जिट्यूडनल मोशन के वजह से किसका मूवमेंट होगा? ये ब्रिज गर्डर का मूवमेंट होगा या फिर ये ट्रॉली फ्रेम का मूवमेंट होगा? ऑब्वियसली ये ब्रिज गर्डर का मूवमेंट होगा। तो यही रीज़न की वजह से यहाँ पर जो मोटर जो लगी होती है कॉर्नर में, इसे बोला जाता है बेसिकली ब्रिज ड्राइव मोटर। ब्रिज को ड्राइव करने का काम करते हैं, सो दैट्स द रीज़न इट इज़ नोन एज ब्रिज ड्राइव मोटर, राइट। ब्रिज ड्राइव मोटर और ब्रिज ड्राइव मोटर के जस्ट बाजू में अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये एंड में जो लगा होता है इसे बेसिकली बोला जाता है एंड ट्रक बम्पर, राइट। तो सिंपल वर्ड में हम लोग बोल सकते हैं जो एंड ट्रक हमें जो दिखाई दे रहा है, एंड ट्रक के आजू बाजू बम्पर लगे होते हैं जिसे बेसिकली बोला जाता है एंड ट्रक बम्पर। फिर उसके बाद यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमारा कंट्रोल पैनल भी लगा होता है कुछ इस तरीके से, यहाँ पर विजिबल नहीं है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें कुछ इस ईओटी क्रेन के लिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से कंट्रोल पैनल लगा होता है जिसके थ्रू ईओटी क्रेन की कंट्रोलिंग होती है, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम लोग देखें, जैसे हमने बात किया था, इसे ट्रॉली भी बोला जाता है, ट्रॉली और क्रैब दोनों के नाम से बोला जाता है। अब यहाँ पर ये वाली जो मोटर होती है इसे बेसिकली ब्रिज मोटर बोला जाता है, राइट। यहाँ पर ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये जो ट्रॉली या फिर जो क्रैब है ये किसके ऊपर स्लाइड हो रहा होता है? ये ब्रिज रेल के ऊपर स्लाइड हो रहा होता है। और यहाँ पर ये जो ब्रिज गर्डर हमें जो दिखाई दे रहा है, ये ब्रिज गर्डर ये बेसिकली एंड ट्रक के ऊपर एंड ट्रक के साथ कनेक्टेड होता है। और ये जो एंड ट्रक है ये बेसिकली जो रनवे रेल है, रनवे बीम के ऊपर जो रेल लगी होती है उसके ऊपर स्लाइड हो रहा होता है, राइट। नीचे के तरफ कुछ इस तरीके से डाउन शॉप कंडक्टर लगा होता है। ये जो डाउन शॉप कंडक्टर है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग 3-फेज सप्लाई टू द मोटर ऑफ दिस ईओटी क्रेन।
कोई कोई ईओटी क्रेन में 3 मोटर भी लगी होती है, कोई कोई ईओटी क्रेन में 4 मोटर भी लगी होती है, राइट। अभी ये बेसिकली 4 मोटर कैसे हम लोग बोल रहे हैं, जैसे कि अगर हम लोग देखें यहाँ पर एक मोटर और एक जो मोटर होगी बेसिकली, जैसे कि अगर हम लोग देखें लॉन्जिट्यूडनल मोशन हो रहा है उसमें भी 2 डायरेक्शन होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखें ये वाली फिगर अगर हम लोग कंसिडर करें, लॉन्जिट्यूडनल मोशन में होगा क्या, लॉन्जिट्यूडनल मोशन में हमारी जो ईओटी क्रेन होगी वो या तो ये वाले डायरेक्शन में जाएंगी या तो ये वाले डायरेक्शन में जाएंगी, मतलब या तो अवे जाएंगी या तो टुवर्ड्स जाएंगी। तो जब अवे जाएंगी तो ऐसे केस में एक मोटर घूमेंगी, दूसरी मोटर बंद होगी, और जब टुवर्ड्स जाएंगी तो एक मोटर घूमेंगी और वो जो पहली वाली जो मोटर है अवे वाली मोटर वो वाली बंद होगी। तो कुछ इस तरीके से हमारी जो ईओटी क्रेन है वो काम करती है। और कोई कोई केसेस में होता क्या है कि एक ही मोटर लगा दिया जाता है अवे और टुवर्ड्स के लिए, जिसमें होता क्या है मोटर का जो डायरेक्शन होता है वो चेंज होता है जब हमारी क्रेन का मोशन लॉन्जिट्यूडनल मोशन चेंज होता है। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया 2 मोटर, और सिमिलरली अगर हम लोग देखें यहाँ पे भी जैसे कि हमने 2 मोटर के बारे में डिस्कस किया, अभी यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये जो ट्रॉली हमें जो दिखाई दे रही है, ये जो ट्रॉली है ट्रॉली में भी बेसिकली 2 मोटर लगी होती है। सबसे पहले अगर हम लोग देखें ट्रॉली का काम क्या होता है, यहाँ पर ये जो ट्रॉली हमें जो दिखाई दे रही है, ये ट्रॉली एक ही इसमें है, ये ट्रॉली के साथ अगर हम लोग देखें कुछ इस तरीके से वायर रोप लगा होता है, और ये वायर रोप के साथ ये कुछ इस तरीके से क्या लगा होता है, हुक लगा होता है। अब ये हुक के साथ हम लोग क्या करते हैं, जो जिस भी ऑब्जेक्ट को हमें लिफ्ट करना है उसको हम लोग अटैच करते हैं और उसको हम लोग लिफ्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये हुक ब्लॉक कुछ इस तरीके से लगा है, ये हुक ब्लॉक, और यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से वायर रोप लगा है। अभी यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें ये बेसिकली होता क्या है, किसी किसी क्रेन में 2 हुक लगे होते हैं। एक जो हुक होता है वो ऑक्सिलरी हुक होता है और दूसरा जो हुक होता है वो मेन हुक होता है। ये वाली फिगर में विजिबल है क्या? तो जो मेन हुक की जो कैपेसिटी होती है वो ज़्यादा होती है और जो ऑक्सिलरी हुक है उसकी जो कैपेसिटी होती है वो कम होती है, राइट। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें कुछ ये फिगर में भी विजिबल नहीं है, तो जैसे कि हमने डिस्कस किया 2 हुक होता है, एक मेन हुक होता है और दूसरा होता है ऑक्सिलरी हुक। ये वाली फिगर में हमें सिर्फ एक ही हुक दिखाई दे रहा है, मेन हुक ही दिखाई दे रहा है, बट मोस्ट ऑफ द क्रेन में होता है कि एक मेन हुक होता है और दूसरा होता है ऑक्सिलरी हुक। अभी जो ऑक्सिलरी हुक होता है इसकी जो कैपेसिटी होती है वो कम होती है, और जो मेन हुक जो होता है उसकी जो कैपेसिटी होती है वो ज़्यादा होती है। तो ऑब्वियसली ऑक्सिलरी हुक को हुक के लिए भी एक मोटर होगी, मेन हुक के लिए भी मोटर होगी, राइट। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पे हमें ट्रॉली में भी टोटल कितनी मोटर मिलती है, 2 मोटर मिलती है। तो टोटल अगर हम लोग मोटर देखें तो हमें कितनी मोटर मिलेंगी, 4 मोटर मिलेगी। फिर उसके बाद अभी अगर हम लोग देखें ये जो केबल हमें जो दिखाई दे रहा है, पूरी जो क्रेन है उसको हम लोग कुछ इस तरीके से, एक पेंडेंट होता है, पेंडेंट के थ्रू हम लोग ऑपरेट करते हैं, राइट। पेंडेंट के थ्रू अगर हम लोग देखें ये जो हुक है ये पेंडेंट में बेसिकली अप डायरेक्शन के लिए एक बटन होता है, उसको जब प्रेस करेंगे तो ये जो हुक है वो ऊपर की तरफ जाएगा। डाउन डायरेक्शन के लिए जब वो बटन को प्रेस करेंगे तो जो हुक है डाउन डायरेक्शन में जाएगा। फिर उसके बाद लॉन्ग ट्रैवल के लिए जब हम लोग क्रॉस ट्रैवल के लिए प्रेस करेंगे तो ऐसे केस में होगा क्या, क्रॉस ट्रैवल होगा, मतलब ये जो ट्रॉली फ्रेम होगा राइट लेफ्ट मूव होगा। सिमिलरली लॉन्जिट्यूडनल मोशन के लिए भी अगर हम लोग देखें इसमें हमें क्या मिलेगा, इसमें हमें बटन मिलेगा। तो सिंपल वर्ड में हम लोग बोल सकते हैं जो ट्रेन की जो ये जो क्रेन की जो कंट्रोलिंग होती है, ये क्रेन की जो कंट्रोलिंग होती है उसको हम लोग किसके थ्रू करते हैं, पेंडेंट के थ्रू करते हैं। किसके थ्रू करते हैं, पेंडेंट के थ्रू करते हैं। अब ये जो पेंडेंट है इसके साथ कुछ इस तरीके से ये केबल लगा होता है, पेंडेंट केबल बोला जाता है। अब ये जो पेंडेंट केबल होता है ये पेंडेंट फेस्टून के साथ क्या होता है, अटैच होता है, राइट। तो यही है हमारी ईओटी क्रेन और ईओटी क्रेन के पार्ट्स, राइट। तो नेक्स्ट वाली वीडियो में हम लोग ईओटी क्रेन के रिलेटेड और थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और आई थिंक सो ये जो ईओटी क्रेन का जो टॉपिक है थोड़ा मतलब 4-5 वीडियो होगी ईओटी क्रेन की, क्योंकि आने वाली वीडियो में विल ऑल्सो भी डिस्कसिंग अबाउट व्हाट आर द फॉल्ट्स विच इज टेकिंग प्लेस इन ईओटी क्रेन्स, व्हाट आर द करेक्टिव मेंटेनेंस एंड प्रिवेंटिव मेंटेनेंस फॉर ईओटी क्रेन, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट। तो 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ अगर हम लोग देखें जो ईओटी क्रेन है इसमें अगर हम लोग देखें कौन सा मोशन मिलता है, हमें लैटरल मोशन मिलता है और लॉन्जिट्यूडनल मोशन मिलता है। और फिर उसके बाद ये जो हुक है इसके लिए भी हमें अप डाउन मोशन मिलता है। तो टोटल अगर हम लोग मोशन देखें, एक एक्स एक्सिस में होता है, एक वाई एक्सिस में होता है और तीसरा जो होता है वो जेड एक्सिस में होता है, राइट। अभी यहाँ पर ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर हम लोग देखें एम्फसाइज हम लोग जो करते हैं लैटरल मोशन और लॉन्जिट्यूडनल मोशन को। अभी जो लैटरल जो मोशन होता है ये लैटरल मोशन किसके वजह से होता है, ट्रॉली के वजह से। और ये जो ट्रॉली फ्रेम है ये बेसिकली जो ब्रिज गर्डर के ऊपर जो रेल लगी होती है उसके ऊपर स्लाइड हो रही होती है। और जो लॉन्जिट्यूडनल जो मोशन है वो किसके वजह से होता है, ये एंड ट्रक के वजह से होता है। और ये जो एंड ट्रक है ये बेसिकली रनवे रेल के ऊपर स्लाइड हो रहा होता है, जिसके वजह से हमें बेसिकली लॉन्जिट्यूडनल मोशन मिलता है। सो दैट्स इट फॉर दिस ईओटी क्रेन की वीडियो के लिए। और ईओटी क्रेन को जो सप्लाई जो मिलती है डाउन शॉप कंडक्टर के थ्रू मिलती है, राइट।
और यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से कंट्रोल बॉक्स लगा होता है। और यहाँ पर ये अगर हम लोग देखें कुछ इस तरीके से ड्रम लगा है, कुछ चीज़ें मिस हो रही है, जस्ट अ सेकेंड। ड्रम लगा होता है और वो ड्रम के ऊपर होता है क्या है, जो वायर होती है वो क्या होता है, वो रोप होता है। जो रोप होती है वो क्या हो जाती है, वाउंड हो जाती है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें कुछ इस तरीके से ड्रम है और ये ड्रम के ऊपर जो वायर है वो क्या हो गया है, वायर जो है वो वाउंड हो गया है। जो रोप है वो क्या हो गया है, रोप वायर वो वाउंड होता है, राइट। तो ये हमारा ड्रम होता है, राइट। तो ये बेसिकली ड्रम घूमता है जिसकी वजह से जो हुक होता है वो ऊपर नीचे आता है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो अदरवाइज अननेसेसरी लॉन्ग हो जाएंगी। आने वाली वीडियो में हम लोग और रोलिंग स्टॉक से रिलेटेड चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे।